बात कर दिया है तो एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर कि आज हम नोट्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैट जीपीटी में मतलब एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर को हम टेक्सचुअल भी करेंगे बट चैट जीपीटी से एक बार उसकी समराइज एंड डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू gain a better understanding about that. तो externalizing problem behavior, youth and mental health revision notes। मैंने prompt दिया था चैट जीपीटी को and then चैट जीपीटी gave me a revision notes। तो meaning of externalizing problem behavior, what is the meaning of externalizing problem behavior? I have already explained you all। externalizing problem behavior are the outward directed behavior, ODB। ODB means externalizing problem behavior or ODB behavior। और मतलब ODB आउटवर्ड डायरेक्टेड बिहेवियर। एक्सटर्नल का मतलब ही क्या होता है? आउट होता नहीं, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जो हमें बाहर से ट्रिगर करता है। दैट्स वाई तो हम उसको आउटवर्ड डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। डायरेक्टेड मीन्स जो हमें बाहर से डायरेक्ट करता है। दैट डम्स अदर्स एंड वॉलेट सोशल रूल्स, जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, अदर्स, और वॉलेट करता है सोशल रूल्स को। और इसमें जो क्लियर मतलब इसमें ना ऊपर ऊपर की टर्म्स की दी गई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो हम उन टर्म्स को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी और यहाँ पे टर्म्स रिटर्न है। aggression, what do you mean by the term aggression? Aggression is the kind of a stage when a person mental health is totally get disrupted and he is filled with aggressiveness. This is called aggression. And then another term is hyperactivity. What do you mean by hyperactivity? Hyperactivity means when a person is very hyperactivity, just like uh, he or she is doing some task and this task is disrupted by anything, and then he or she will be distressed, and most of the time mood swings also conclude in the hyperactivity. Okay, so let's move on to the another deficiency. What do you mean by the term deficiency? So the deficiency term means deficient is a kind of a lacking of something। डिफिशियंस डिफिशियंस मीन्स होता है बेसिकली कमी। ओ डी डी तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अपोजिशनल डिफिशियंट डिसऑर्डर। तो डिफिशियंस जो होता है ना उसकी कमी, जैसे होता है नहीं अपोजिशनल डिफिशियंट, तो डिफिशियंट मीन्स कमी। किसी भी चीज़ की कमी भी हमें एक्सटर्नलाइज करते हैं हमारी प्रॉब्लम बिहेवियर को। ओके, फाइटिंग। what do you mean by the term fighting? Fighting is a kind of a simple when a person is enraged and filled with aggression, hyperactivity, then he or she starts fighting about useless things. Okay, and then let's move on to the another term, lying. What do you mean by the term lying? It is a casual form of something, or maybe a person, he or she will be lying anything, वो भी casually. She opted easily in her behavior. That's why we have to do the term, uses term lying। excessive lying, we have to यहाँ पे होना चाहिए था excessive lying and lying in a very usually form। Okay, so stealing is a bad habit, but a person who has disturbed behavior, yeah, we have to say that outward directed behavior, yeah, externalizing problem behavior, he or she may be indulged in stealing and it gives pleasure to a person who is indulged in that form। Okay, let's move on to the another and internet addiction। तो addiction देखिए, internet usage is a good thing कि you have to use internet for your educational purposes, for your क्या कहते हैं, for your मतलब good kind of a things, that's like you have to understand something and you have to use internet for your growth perspective। but somebody who has used excessive internet, and most of the time sometimes you have to use entertainment purposes for a respective manner, it is a kind of a good, but you have used excessively, then it is a kind of a bad thing। Okay,
So excessive use can also disrupt your behavior. That's why that's then we can call it internet addiction. Addiction is not a good term. Addiction is anything. Just like alcohol addiction is also a good, not no no, because alcoholism is very just like liquor hai, wine hai, just like it's a bad kind of things because it हमको हार्मफुली इफेक्ट करेंगी. अब हम बात करते हैं डेलिक्वेंसी. व्हाट डू मीन बाय द टर्म डेलिक्वेंसी? डेलिक्वेंसी इज अ काइंड ऑफ अ कंडक्ट डिसऑर्डर बिहेवियर एंड इट इज आल्सो अफेक्ट द externalizing problem behavior, also trigger the person behavior. And then let's move on to the chat gpt flowchart. Externalizing behavior: stress, emotional problems, poor emotional regulation, outward behaviors, aggression, rule breaking, violence, problem in school, family and society. Okay, that's a chart. It will show you the summarizing way of the flowchart. Okay, characteristics of analyzing behavior. What are the characteristics? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एस्ट्रलाइजिंग बिहेवियर के? व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? तो अभी हम जो प्रीवियसली पॉइंट्स डिस्कस करते आए हैं उसी की डिफिशियंसीज में हम पॉइंट्स आगे भी आते रहेंगे. जस्ट लाइक अग्रेशन बिहेवियर यहाँ पे आ गया. हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था द टर्म एग्रेशन. अब यहाँ पे आ गया अग्रेसिव बिहेवियर. दैट्स वाई मेरे टंग पे अग्रेशन था. aggressive behavior, aggression and aggressive behavior is a kind of a same. Just like aggression, a person is in aggression. Aggressive behavior, totally it is doing like aggressive behavior, a kind of a usually or maybe daily. temper Temper tantrums. Tantrum is a kind of a thing you heard before na, ki he or she, my girlfriend, is showing too much tantrums to me. तो tantrum is not that kind of a tantrum. अगर हम totally tantrum अलग मतलब tantrum हम जो word है हम ऐसा बोलेंगे यार तू बहुत tantrum दिखाती है मुझे, तो वो उस टाइम में tantrum is a good kind of word. but temper tantrum अलग हो जाता है. यहाँ पे मैं temper tantrum की बात करती हूँ. what do you mean by the temper tantrum? कोई person है just like who has a externalized behavior, problem behavior. So usually she may have totally temper tantrums. She will very short tempered. Short tempered means a different kind of thing, but temper tantrums. तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मुझे ये नहीं करना. That's the kind of a temper tantrum. Okay, it's like let's move on to the another deficient towards authority. Deficient towards authority. Just like कमी होना. just like कि कोई person है उसको कमी हो रही है ना. That's like deficient towards authority. This term I also deeply explain in the next. Hyperactivity. What do you mean by the term hyperactivity? Hyperactivity is a term when a person is overaged or something hyperly engaged. मतलब just like आपने ADHD disorders na, just like ADHD is a kind of a hyperactivity disorder. uh, Basically it is usually seen in the child who may be aged of no, I am confirmed, this is my tone of saying maybe, but I am sure uh, about the age of 12 to 18 among the children. These are maybe मतलब most prompted to be gain ADHD. But usually in we have to say that boys, not girls, are very prompt to be so far away from this kind of disorder. Ratio is 2:1. Okay, तो hyperactivity की मैं बात करूँ तो ADHD, attention deficit hyperactive disorder में आता है ये. And then let's move on to the another destruction of property. A person who is externalized problem behavior, he is very filled with जब वो मतलब temper tantrums आ रहे हैं उसको, तो वो destruction of property तो करेगा ही ना. मतलब करेगा या करेगी, तो destruction of property वो करेगा. मतलब है ना, जैसे मेरी टोन है ये. destruction of property कि मतलब मान लो गुस्से में तो सामान फेंकना चालू कर दिया. बट ये हमेशा नहीं होता. यूजुअली कभी कभार कोई कहता है तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, कब तब किया. पर जो पर्सन यूजुअली करता है या उसके डेली हैबिटेट है,
तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर में आता है, ओके। एंड लेट्स लाइक ये वही टर्म्स हैं जो अभी हम करके आए हैं। यू हैव टू सी ना, अभी हमने क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टीलिंग, लाइंग, ट्रांसेंटी, फाइंडिंग, ये टर्म्स मैं कह रही हूँ, पता मैं क्यों ये चैट जीपीटी करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हम टर्म्स से फैमिलियर हो जाएंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड टर्म्स हैं वो चैट जीपीटी ने दिए हैं। नहीं, मैं एक्चुअल टेस्ट भी कवर करूँगी इन माई वीडियोज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैमिलियर विद द टर्म्स ना, दैट्स वाई। तो ये वही सेम है, सिमिलर है। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। externalizing behavior, aggression, fighting, violence, defiance, argumental behavior, rule breaking, tendency, sealing, impulsivity, hyperactivity, poor control। ये जो फ्लो चार्ट है ये आप देख लीजिएगा, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। अभी हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। क्या किया हमने, जस्ट लाइक व्हाट इज externalizing problem behavior and then characteristics of externalizing behavior या problem behavior, but यहाँ पे behavior mention है। और इसकी ना मैं ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ जिससे ना हमें टर्म्स रिवाइज हो जाए। तो ये तो डेफिनेशन तो आपको याद होगी कि एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर आर आउटवर्ड डायरेक्टेड बिहेवियर दैट डिस्टर्ब अदर, जो डिस्टर्ब करता है अदर्स को और वायलेट करता है सोशल रूल्स को, एंड ऑल्सो अफेक्ट द पर्सन हु हैज सफर विद दिस, है ना। एंड देन तो अब हम ये टर्म्स को याद करने के लिए एक वो क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की काइंड ऑफ बनाते हैं, AHTFLSID। तो इसका तो मैं एक्चुअली मैं सीधा सीधा बना देती हूँ। एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, डेफिशिएंट, फाइटिंग, लाइंग, स्टीलिंग, इंटरनेट एडिक्शन एंड डेलिक्वेंसी। तो कॉजेस ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, कॉज क्या होता है, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। कॉजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी आई हैव टू से ऑप्शन, नॉट point number A, biological factors, just like someone who I have to give you example, that's why you have to understand it deeply। तो someone who someone he or she may be मतलब a person, okay। someone he or she may be suffers biological factors, मान लो a person lineage is a kind of a mental अनस्टेबिलिटी या होमोजीनियस स्ट्रेस, तो काइंड ऑफ अ जेनेटिक है ना ये, तो फिर कि उसके जीन्स में ही है ये, कि मतलब वो पास आउट हो रहा है ना जीन से, तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो काइंड ऑफ अ कम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आ गया इसमें, ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं इसमें, पेरेंटल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेरेंटल कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती हैं, पेरेंट्स में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस रही होगी, लो आईक्यूज का मतलब इनहेरिटेड है अपने पेरेंट्स से, टेम्परामेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। आई होप यू डोंट फॉरगेट अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कॉज में आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप हार्श पेरेंटिंग होती है, एक कॉज होता है ना। मैं कॉज की बात करूँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मैं कई चीज़ें लिख सकती हूँ कि एक तो पेरेंटल नेग्लेक्ट हो गया, हार्श पेरेंटिंग हो गई, पेरेंटल नेग्लेक्ट इज ऑल्सो कंक्लूडेड, हार्श पेरेंटिंग हो गई, वॉयलेंस एक्सपोजर हो गया, पुअर सुपरविजन हो गया, पॉवर्टी हो गई, फैमिली कन्फ्लिक्ट हो गया, प्रेयर प्रेशर में डिस्टर्प्टेड बिहेवियर आ गया। एंड देन साइकोलॉजिकल फैक्टर की मैं बात करूँ, ये टर्म यहाँ पे भी आ गई है बिकॉज ये टर्म तो इंग्लिश मैथ हर जगह यूज़ होती है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना, और आजकल क्या बहुत ज़्यादा पहले से ही। तो अब मैं बात करती हूँ, ये सभी कहते हैं कि हाय भाई मेरे को एनजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, लो सेल्फ एस्टीम हो गया, पुअर कोपिंग स्किल्स। बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आई हैव टू से समथिंग इन दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, कि इट्स लाइक एंजाइटी इज वेरी अ डीप डाउन टर्म। तो you don't ever use the term anxiety for your anything, because anxiety is very deep down term and depression is also.
यूजुअली वी हैव टू यूज द काइंड ऑफ टर्म स्ट्रेस। यार मैं आज बहुत स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस इज अ गुड टर्म। मतलब ऐसे स्ट्रेस भी बहुत थकावट को कहते हैं कि हाँ मेंटली थकना, फिजिकली थकना, बट स्ट्रेस हम यूज कर सकते हैं। बट एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो लोग यूजुअली कैजुअली यूज करते रहते हैं ना, हाय भाई मेरे को डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन को आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी इन द सेंस, मैं हिंदी में बोलूँ तो। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये टर्म्स जो होती हैं ये ऐसे काइंड ऑफ यूजुअली यूज नहीं की जाती हैं। तो stress is a commonly usable, I have to say stress is a commonly usable term, but not anxiety and depression. Okay, okay, let's move on to the another, क्योंकि मैं तो डीप डाउन ही चली जाती हूँ। बायो सोशल इंटरेक्शन मॉडल। बायो सोशल इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है? अब बायो से आप क्या समझते हैं? बायो, क्योंकि इसके आगे आया बायो सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो बायो से मतलब बायोलॉजिकल, ओके। बायो मीन्स बायोलॉजिकल ही होता है। तो बायो सोशल इंटरेक्शन मॉडल, बायोलॉजिकल रिस्क। बायोलॉजिकल रिस्क में आप जैसे ही बायोलॉजी की बात आती है ना, आई माई ओन माइंड से जेनेटिक्स, तो यहाँ पे जेनेटिक्स आना ही आना है। तो बायोलॉजिकल रिस्क में जेनेटिक्स, पेरेंटल प्रॉब्लम्स, जेनेटिक्स में पेरेंटल प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड होती हैं, ओके। साइको सोशल रिस्क, साइको सोशल रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें पॉवर्टी, वायलेंस, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट से है, जस्ट लाइक अ पर्सन इज वेरी 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 पुअर, मान ही और शी मे बी यूज टू लिव इन अ स्लम्स, तो मतलब पॉवर्टी जो है उसकी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा उसको ट्रॉमा देगी उसकी लाइफ टाइम, जस्ट लाइक उसकी मेंटल ग्रोथ भी ना एक टाइम पे मतलब वो अफेक्ट करेगी ना। पॉवर्टी, वायलेंस, फैमिली स्ट्रेस, अ काइंड ऑफ अ मदर एंड फादर गेट डिवोर्स्ड, हाउ कैन अ चाइल्ड लिव सेपरेटली, एंड मतलब आजकल तो बहुत ट्रेंड में है कि मतलब डिवोर्स जाते हैं, तो मतलब वो ना फिर मतलब चाइल्ड की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। और वॉयलेंस इज ऑल्सो कि फैमिली में डेली डेली फैमिली कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मदर एंड फादर के बीच में नहीं बनती, तो ये सब चीज़ें होती हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन मॉडल में। फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट, आई हैव टू एक्सप्लेन, फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए, एंड बायोलॉजिकल। तो अब ये वही आपको नहीं लगता कि बायो सोशल इंटरेक्शन मॉडल में आ गया? वही चीज़ें ना घूम फिर के आ रही हैं, तो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स इन वेरी डीपली मैनर, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, types of personalizing problem behavior. So let's recall once. When we have to move on to the next, we have to recall the first. We have to read before. Okay. So first of all, we have to cover what is problem, what is externalizing problem behavior, second characteristics of externalizing problem behavior, and then after that we have to cover causes of externalizing problem behavior, and let's move on to the another types of externalizing problem behavior. What is delinquency? Delinquency means, delinquency you have to refer to illegal or antisocial act committed by youth above या below 18. below means होता है नीचे, above means होता है ऊपर, ओके। ये मैं बहुत लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम, मेरी भी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना बहुत पहले, ओके। तो genuinely I have to say that, क्योंकि delinquency क्या होती है? delinquency refers to an illegal or antisocial act committed by youth before 18 years. um, I can use very simple terms to explain this. Delinquency refers to illegal or antisocial. What do you understand yourself by the term illegal? Illegal is very 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 basic term. Anybody is do something wrong. Anyone is do anybody or anyone is do something wrong, that is illegal. Something wrong means very मतलब kind of a big mistake. Oh, okay. Just like stealing from bank, it is illegal ना. एंड एंटी सोशल एक्ट, एंटी सोशल मतलब सोसाइटी उसका, जस्ट लाइक मान लो आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, मैंने भी देखा है, ये देसी एग्जांपल है, मतलब मेट्रो में आजकल लोग नाच गाना मचाने लग जाते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, ये मैं न्यूज़ वाले दिखाते हैं जीएनटी पे, फ़ोन में आ जाता है, तो वो अब नॉर्मल बिहेवियर है काइंड ऑफ, उन्हें मतलब
अरे मान लो तो उन्हें रील्स व्यूज के लिए भी करना है ना, पर उनकी आप साइकोलॉजिकल, अगर मैं बात करूँ उनकी आप मेंटल स्टेट देखोगे, तो वो इतना ज़्यादा एडिक्शन में आ गए हैं इस चीज़ की कि उन्हें मतलब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे अब नॉर्मल एक्ट एक्ट करने पड़ रहे हैं, वो भी पब्लिक प्लेसेस में। तो उनकी जो मेंटालिटी है वो सफ़र कर रही है इस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। अगर मैं डीप डाउन जा मतलब अगर कोई भी रिसर्चर है, आई हैव टू बिलीव इन रिसर्चेस, तो अगर कोई रिसर्चर है तो वो मतलब किसी के भी मेंटल स्टेट को, रिसर्चर्स का तो काम होता है रिसर्चेस करना। मैं बेसिक रिसर्चेस की बात कर रही हूँ, तो इसलिए साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ पदार्थ। तो फिर उनकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गई ना, जब भी तो वो ऐसे मतलब इलॉजिकल थिंग्स परफॉर्म करते हैं। चलो जोक सपाट अलग बात है, ये समझाने के लिए बस खुद भी मतलब देखो तो मतलब मैं आज करंट सिनारियो को लेकर हर चीज देखती हूँ, तो भाई बहुत ज्यादा मुझे तो खुद भी बहुत ज्यादा मतलब एंजॉय नहीं करती, बट वो होता है, शॉक होती हूँ मैं, हाउ कैन अ पर्सन डू लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन अ पब्लिक प्लेस। इट्स लाइक if he or she suffers so then it is acceptable, बट आप व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए, इन सब किसी का झगड़ा हो रहा है मान लो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैं करंट एग्जाम्पल क्या सिनेरियो दूँ, मान लो किसी का झगड़ा हो रहा है तो वो तो समझ आता है कि हाँ उनके डिस्प्यूट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, बट ये व्यूज के लिए तुम कर रहे हो, झगड़ना भी पब्लिक प्लेस में थोड़ा बहुत ही चाहिए ना। या मान लो नाराज हो गए, इधर उधर हो गए, वो नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक जोक्स अपार्ट, मेरा बहुत ज़्यादा डीप डाउन चला जाता है, डेलिक्वेंसी हम कर रहे हैं। तो डेलिक्वेंसी में आपको समझ आया ना कि डेलिक्वेंसी रेफर करता है इलीगल और एंटी सोशल। इलीगल वो होता है जो गलत है, एंटी सोशल वो होता है जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होता। कहते हैं ये पर्सन ना एंटी सोशल है। एंटी सोशल मतलब ये ऐसे काम कर देता है ना हट के, कि कोई नहीं करता। और भाई एंटी सोशल आप समझ ही रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया, कम्युनिकेटेड बाय यूथ, पर मैं यहाँ यूथ की बात कर रही हूँ, है ना। तो बिलो जो 18 के नीचे के यूथ होते हैं, आजकल तो भाई टाइम ऐसा आ गया, 5 साल का बच्चा यूथ बन गया है, लिटरली आई हैव सीन इन माई ओन आईज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हियर। तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर, डेलिक्वेंसी में हम बिहेवियर को जानेंगे। अब अब नॉर्मल बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी अब नॉर्मल नहीं, इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ। वो भी टाइप्स ऑफ पर्सनलाइजिंग बिहेवियर में। तो थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स मैंने स्टीलिंग पर आए, अगर चोरी चोरी को मतलब एक चीज के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो हम मैं थेफ्ट बोलूँ, स्टीलिंग बोलूँ, बात तो एक ही हो गई ना, वही तम सारी है ना रिपीट। द थेफ्ट। वैंडलिज्म, वैंडलिज्म क्या होता है? वैंडलिज्म मीन्स अ टर्म व्हेन यू वैंडलाइज एनीथिंग और दैट, ओके। ड्रग यूज क्या होता है? मैं अभी ऊपर अल्कोहलिज्म आया था, मतलब अल्कोहल या एडिक्शन ये सब ना। तो ड्रग्स, यूथ को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए आजकल को, कोकीन, हेरोइन, ये बहुत ट्रेंड में है, मैं सुनती हूँ लोगों से जस्ट लाइक मैं बता नहीं रही, आप किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ इट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस, यू डोंट हैव अ काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। तो ड्रग यूसेज को अपनी हैबिचुअल नहीं लेना चाहिए। ब्रेकिंग रूल्स, रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। रूल्स काइंड ऑफ अब मान लीजिए रेड लाइट, सिग्नल आ गया है ना, तो आप सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये रूल ब्रेक किया ना आपने, तो ऐसे रूल भी ब्रेक नहीं करने चाहिए। वॉयलेंस, वॉयलेंस नहीं मचानी चाहिए, मान लो हुड़दंग नहीं मचाओ, आप जा रहे हो, किसी से आपका थोड़ा सा झगड़ा हो गया मान लो सड़क पे, तो आपने वही गाली गलौज मचा दी कि हाँ भाई तेने वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए, मतलब जहाँ जरूरत हो कभी कभार चलता है, बट यार यूजुअली पैटर्न में हो रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनलाइजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर। आई होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कॉजेस क्या होते हैं? अभी हमने बिहेवियर पढ़ा, कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस वही होते हैं जो अभी हम करके आए हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी थे उसमें, जेनेटिक क्या लिख देंगे, एक्सपोजर, वॉयलेंस, लैक ऑफ सुपरविजन, बैड पीयर ग्रुप। फ्लो चार्ट आ गया है, आई थिंक यू हैव टू सी द फ्लो चार्ट, बट फ्लो चार्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, तो आपको मैं जो समझा रही हूँ आप वो समझो। इंटरवेंशंस क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की कोई इंटरवेंशंस तो होती ही हैं। तो चाइल्ड जो है वो प्रिवेंटिव के लिए स्कूल जाते हैं, सोशल ट्रेनिंग होती है, कम्युनिटी होती है, पेरेंटल एजुकेशन होती है, थेरेपीज। अब उसके अंदर सुधार कैसे आएगा? मल्टी सिस्टमेटिक थेरेपी, फैमिली की काउंसलिंग और बिहेवियर, बट
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो पीपल यूज टू ब्लेम दैट पर्सन, instead of curing that person people used to blame that person. Okay, and let's move on to the another point. Conduct disorder, what do you mean by the term conduct disorder? Meaning a serious behavior disorder involving persistent violation of rules and rights of others. It's very, I maybe I can say that very much um destroying, no, because someone is involved into sustaining violence of rules or rights of others. That's the rights of others is also a very big term. System symptoms: aggression, bullying, stealing, destruction of property, lack of empathy, lacking. These are the terms. ये सारी terms I think ये repeat हो रही है. You have to remember them, you have to learn them, you have to understand them, then let's you have to easily recall these terms. Interventions क्या होते हैं? Parental management, cognitive behavior, एंगर मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की मैंने बात करी, ऊपर ही मैंने बात कर ली, मैंने समझा दिया है। अभी मैंने बात की थी ना अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की, तो उसमें इंक्लूड हो गया है। अग्रेशन की मैं बात करूँ तो हॉस्टाइल बिहेवियर आता है अग्रेशन में, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर आता है, फ्लो चार्ट देख लीजिए आप अग्रेशन का। इंटरनेट एडिक्शन, ये लेट्स मूव ऑन। इंटरनेट एडिक्शन इज अ वेरी आई कैन से दैट इंटरनेट एडिक्शन आजकल सबको है, बट इंटरनेट एडिक्शन इज अ गुड, नॉट, नो ना, व्हाई नॉट? क्योंकि एडिक्शन इज अ टर्म व्हेन यू आर एडिक्टेड without any reason. Sometime I also मतलब I am very real, मतलब I am very, I can say that कि मतलब एथिकल पर्सन, तो दैट्स, मैं अपना सेल्फ का एग्जांपल दूं तो समटाइम यू आल्सो, यू आल्सो फील दैट कि समटाइम आई आल्सो without any reason scroll the shorts in YouTube. My mind से कि why are you doing like this, क्योंकि मैं उन्हें देख भी नहीं रही, मेरा दिमाग मतलब ऐसा है कि बस मेरी आंखें उसी पे पर मेरा दिमाग कहीं और है, एंड देन आई माई फिंगर स्क्रॉल करे जा रही मतलब आगे, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, एंड समवन हु इज मतलब आप अपने आप को नंब कर रहे हो ना, why are you doing like this? You have to numb yourself, that's why. So meaning excessive and uncontrolled internet use causes life problems. Sometimes I also remember myself ki I am not able to tackle the environmental issues, like I am not that kind of a person who usually go to the shops to buy something. Literally, I am not able to do. No, I am able to do. I am physically fit. I have to work on my fit, but I am not going because my habit has in my childhood, since my childhood I have to go usually, but now sometime time has changed me a lot. Not time, I am changed a lot. तो इंटरनेट यूसेज जो है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, विड्रॉवल सिम्टम्स होने चाहिए, सोशल आइसोलेशन होनी चाहिए। सोशल आइसोलेशन यहाँ पे टर्म क्यों यूज की गई है, क्योंकि इसके सिम्टम्स हैं, और सो सॉरी, होनी चाहिए मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए कि इतनी भी इंडल्जमेंट नहीं होनी चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए ना, जस्ट लाइक यू हैव टू इंडल्ज मोर इन योर सोशल, तो दैट्स व्हाई विड्रॉवल सिम्टम्स, सोशल आइसोलेशन है सिम्टम्स है ना, एंजाइटी विदाउट इंटरनेट। हाँ, सो लाइक सम टाइम, नहीं मैं ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बिना मैं जी नहीं सकती, क्योंकि इंटरनेट तो भाई मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं तो 3-4, मैंने खुद को नोटिस किया एक बार, मैं तो एक हफ्ते बिना मैं फोन वोन, मेरी कोई मतलब एडिक्शन नहीं है, मैं सेल्फ एग्जांपल देती हूँ ना, जस्ट लाइक एक्सेसिव गेमिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। भाई जो इंसान ये सब यूज नहीं करेगा वो यही बोलेगा ना कि आई एम नॉट इन एबल टू यूज इंस्टा बिकॉज आई एम सच अ फकिंग काइंड ऑफ अ थिंग्स दिस आर वेरी फक, आई एम नॉट यूज इट लाइक
इंटरवेंशंस एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने चाहिए, मैं कह रही हूँ. इट्स लाइक आई थिंक आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइम, क्योंकि माई नेक नेक कह रही हूँ मैं, माई वोकल इज ऑल्सो very pain, in is in very pain. Okay, let's move on. Bye, some other time.